तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर एवरीवन। बट मेन फोकस रहेगा आजकल हमारे मेन किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। ये हमारे ब्लड में चला आ रहा है कि लड़के जब छोटे होते हैं तो अक्सर पेरेंट्स उनको ही कहते हैं हाँ हमारा बेटा बड़ा होके हमें विदेश ले जाएगा। वाई ओनली मैन? तो बचपन से या बड़ा होके हमारे लिए कार खरीदेगा। कार होती है घर में, फिर भी उनको एक होता है कि हमारा बच्चा हमारे लिए और अच्छा 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 करेगा। तो हमेशा क्या हुआ, उस बच्चे पे वो बचपन से प्रेशर बन गया कि भाई मैं लड़का हूँ, मुझे तो ये करना है। भले उसके खुद के इंटरेस्ट कुछ और होंगे, उसको अपने पापा की शान के लिए करना है। सो वो एक प्रेशर सोसाइटी में बचपन से उस पे बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो हम ऐसे कुछ चीजों के बारे में भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं सबसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी कौन सा स्ट्रेस है। अभी हम छोड़ते हैं कि हम मैन है कि विमेन है, अभी हम देखते हैं कि हम एक ह्यूमन है। तो कौन सा स्ट्रेस आपकी लाइफ में चल रहा है जो आप सबके साथ शेयर करना चाह रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। In a society, first of all, we need to balance it out, be it well-being, be it empowerment, being it progress. Everything need to be there, thought through for all type of entities. So for that reason, first of all, I want to thank you both to bring this topic. My opinion is there are two primary reasons as per what I can think. First is nowadays in our busy life we are very much disassociated or disconnected with our friend circle or anyone with whom we can share our thoughts, with whom we can share our challenges, problem other than your wife or your husband. If you will not have regular connect with your friend circle or anyone with whom you can share your thoughts, your challenges, your opinions, that creates a stress in yourself because that will keep things within yourself. The second is like the expectation. So primarily stress comes where we can't fulfill the expectation, be it from ourselves, be it from someone else, like maybe for husbands the expectation from parents, from wife, from kids, and same for girls the expectation from husband, and then other than that the in-laws, parents, kids, everyone. So there are some say so many sort of people we are surrounded by, and some way or the other, directly or indirectly, there are expectations from everyone. So when we think that we are not able to fulfill this expectation, the stress automatically comes into. स्ट्रेस हम ज्यादातर वही चीजों का लेते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, Correct. जो और और फिर Definitely. स्ट्रेस लेके कुछ कर नहीं सकते होते हैं, तब हम वो स्ट्रेस हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि हम कुछ कर भी नहीं पा रहे होते हैं और हम उसके बारे में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। हम्म। So what I feel, I'm very much agreed with the point. You should have somebody to whom you can share it. और अगर नहीं है, we should find a person. Have you ever said I am fine when you are not? Yes, Okay. because it's always you say yes, irrespective you are fine or not. So there are many occasions where you are not, but still answer is always you are fine, and that's where comes to the very near and the same frequency people only you can really say no, I'm not fine. But Exactly. mostly we are interacting with this virtual life Mhm. where if the question is asked how are you, your answer is fine. Correct. Have you ever pretended to be busy to avoid a conversation? Have you? Yes. No, I have not. No. No, I am very much like जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी मैं तो मतलब जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं वाली हूँ। Yeah. Have you ever stress eaten? Like you have indulged into overeating or eating lot of desserts because you are in stress? Very much. Yes. Okay. Do you think watching memes continuously or social media gives stress relief? Make you away for some time out of stress, because you when you are watching anything which you are doing with indulgence, you are out of the stress thoughts. That is the reason, That's but a it distraction. that's a different Distraction. thing. But if the moment you will stop, your stress are back. So it Yes. it Yes. doesn't help you giving your stress away, it just help you getting cut off for some time. ओके। नाउ मैं 2 मिनट आप सबको देना चाहूंगी, अपनी इमेजिनेशंस को वाइल्ड करिए, दौड़ाइए। और ऐसा कौन सा सेफ स्पेस आप ड्रीम करते हैं जिससे आपको लगता है आपकी लाइफ की सारी वरीज चली जाएंगी? क्योंकि बहुत सारी वरीज हैं, मुझे पता है आप लोग अभी बोल भी नहीं पाए होंगे, आपके दिमागों में होंगी, बट हम वो सोच सकते हैं और उससे एक ड्रीम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम विजुलाइज करते हैं और अपने व्यूअर्स को भी वो विजुलाइज कराते हैं जिससे वो भी इंस्पायर हो। और अब कमेंट सेक्शन में अपने ड्रीम स्पेस के बारे में भी जरूर लिखें, क्योंकि सॉल्यूशंस तभी पॉसिबल हैं जब हम बहुत सारे ओपिनियंस लेंगे और बहुत सारे क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेंगे।
dream scenario where you want to be in, हम्म। इसके बारे में मैं बहुत सोचता हूँ, और मैं काफी, इसलिए मैं ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी थॉट इट थ्रू. सो व्हाट आई थिंक इज, कोई भी टारगेट अगर मैं बनाऊं अपने लिए कि मेरे पास ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, या बकेट लिस्ट बनाऊं कि मैं एक बार यूरोप ट्रिप करके आ जाऊं, एक बार हिमालयास का ट्रिप कर लूं, और उसके बाद मेरे पास 4 लग्जरी गाड़ियां हो, 2 घर हो, इस टाइप का टारगेट अगर मैं बनाऊं, एंड देन आई से कि इफ आई विल हैव दीज ऑल थिंग्स एंड देन आई विल बी हैप्पी, नो, आंसर इज नो, आई विल नॉट बी. सो वो एनालिसिस के बाद वेयर आई केम टू अ कंक्लूजन, एंड माय ड्रीम वर्ल्ड वुड बी द वे ऑफ लिविंग, डेफिनेशन ऑफ वे ऑफ लिविंग. फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अपना डेली रूटीन क्या चाहिए, मुझे अपनी पूरी लाइफ इस तरीके से जीनी है, ठीक है, और मेरी इस लाइफ में थोड़ा सा टाइम मेरे फिजिकल फिटनेस के लिए होगा, थोड़ा सा टाइम स्पिरिचुअल डेडिकेशन के लिए होगा, बाकी 8 से 9 घंटे जो भी मैं वर्क करता हूँ वो वर्क करूंगा, रिमेनिंग टाइम, एंड आई वॉन्ट टू लिव दिस लाइफ विथ अ सिलेक्टिव पीपल, ठीक है. तो जब instead of achieving 5 houses, 5 cars and this and that, what I want कि मेरी लॉन्ग टाइम लाइफ और लॉन्ग टर्म लाइफ का रूटीन, process, way of living should be in a particular way. I just give an example. What it should look like is with me, which I will I'm working on. But this is the dream place I want to be, because if you will run after materialistic things, they will not go with you, and in achieving that you will lose the time of your life, of your precious life, while the you define the way of living and actually achieve living that life that way is the utmost place I want to be in. फिर से व्यूअर्स का अटेंशन इस पे डालना चाहूंगी कि न्यू एरा में इतने सारे एवेन्यूज, इतनी अपॉर्चुनिटीज, इतना तामझाम और इतनी फास्ट पेस लाइफ में हम लोग कभी अपनी हेल्दी बैलेंस्ड रूटीन भी मिस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा स्लो डाउन करना भी जरूरी है और अपनी हेल्दी रूटीन को ढूंढिए। क्योंकि जैसे कि पीयूष एक मैन है और पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, और उन्होंने कहा है कि उनको लगता है कि बैलेंस्ड रूटीन उनका स्ट्रेस काफी हद तक मैनेज कर सकती है, और वो उनका एक ड्रीम सेफ स्पेस है। अंकिता, आपको क्या लगता है? दुनिया मुझे किस चश्मे से देखती है ना, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है. लाइक वी मटेरियलिस्टिक कब तक रहेगा? वी आर नॉट इमॉर्टल, राइट? सो व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी शुड नॉट इफेक्ट मी. व्हाट आई थिंक ऑफ माई लाइफ, दैट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, राइट? आई हैव डन, लाइक मैंने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं घर में बैठी हूँ. दूसरा क्या सोचता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं अपने साथ क्या कर रही हूँ, या मेरे जो लव्ड वंस है, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं ना, उससे बस फर्क पड़ना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है. हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है. हम दुनिया समाज के बारे में बहुत सोचते हैं, और वो सोचना ही हमारे अंदर स्ट्रेस लाता है. लाइक तो आप खुद सोचो एक दिल से कि हम अपने लोगों को, अभी हमारे घर से किसी का फोन आएगा, हम काट करके बाद में बात कर लेते हैं, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. बट किसी Very good. आपके बहुत Yes. इंपॉर्टेंट, किसी ऐसे फॉर्मल रिलेशनशिप वाले का फोन आएगा तो अरे वो क्या सोचेगा यार, मैंने फोन कट कर दिया. हम उनके बारे में 10 बार सोचते हैं. तो ऐसा, ये फैक्ट ये है, बट होना ये चाहिए कि उसका उल्टा होना चाहिए. हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क अपने से और अपने लव्ड वन से ही पड़ना चाहिए. तो एक मुझे लगता है अपना मी टाइम, मी स्पेस, अपनी स्पेस होना बहुत जरूरी. पर्सनल स्पेस, ओके। एंड यू विल बी सरप्राइज, इस एरा में भी मैं बहुत सारी अपनी फीमेल फ्रेंड से ये बात करती हूँ ना, पर्सनल स्पेस वाली, तो अरे एक बच्चे के बाद हस्बैंड से क्या पर्सनल स्पेस? ऐसा जरूरी नहीं है. पर्सनल स्पेस अपनी एक पर्सनल स्पेस होती है, जहाँ आई बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मुझे कैसा चाहिए True. क्या, करेक्ट। वो स्पेस अपनी लूज, कहीं ना कहीं हमको वो लूज नहीं करनी चाहिए. तो जब ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी स्पेस, बस हम उसमें जाके खो जाना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, हम कुछ भी नहीं करना चाहते. आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ. तो वो स्पेस अपनी कहीं ना कहीं डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए, और सोशल प्रेशर भी नहीं होना चाहिए कि तुम उसे डाइल्यूट करो. ऐसा भी नहीं है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के आप वो पर्सनल स्पेस को वो कर रहे हो, इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बट होनी चाहिए. देन हेल्दी ब्रेक्स. अगर मैं टाइम आउट चाह रही हूँ तो मुझे टाइम आउट मिलना चाहिए. उसको मेरी एरोगेंसी या यार मुंह फुला के बैठी है, इसमें Hmm. टाइम तोला आउट नहीं आल्सो जाना वेरी चाहिए. गुड पॉइंट, यस करेक्ट। वेरी गुड पॉइंट. नहीं, फिर से हमको बहुत अच्छा पॉइंट मिला, और मैं व्यूअर्स को फिर से इम्पोर्टेंस बताना चाहूंगी। सेफ स्पेस, हेल्दी स्पेस जहाँ कोई जज नहीं करे, ब्रेकआउट्स, मी टाइम, पर्सनल स्पेस,
ये बहुत जरूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। अब अगर आप मेरे से पूछो तो मेरा कुछ सालों का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस खुद से हैं। मेरा स्ट्रेस ये है कि मैं बहुत जल्दी बर्न आउट हो रही हूँ, राइट। तो ये न्यू एरा में आप लोग, बहुत सारे लोग इससे गुजर रहे होंगे कि हम काफी जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटीज है इस वर्ल्ड में अब, सोशल मीडिया, ये वो, फाइनेंस, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी तमाम चीजें हैं। बट मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई। फिर मैंने अपने स्ट्रेस को बैलेंस कैसे किया, मैं स्लो डाउन होना स्टार्ट की। तो मैं बोलूंगी कि मेरा सेफ स्पेस ये है कि कभी कभी हम थोड़ा सा स्लो डाउन भी हो सकते हैं, और हमें वो स्लो डाउन होने का भी स्पेस मिलना चाहिए, एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। और लोग ऐसे नहीं जज करने चाहिए कि अरे तुम अभी कुछ नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। नहीं, अभी आई एम टेकिंग अ ब्रेक। तो मैं ये एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि आज के फास्ट मूविंग एरा में हम लोग थोड़े बहुत ज्यादा भी बिजी हैं। और एक और चीज मैंने महसूस किया है कि मैं काफी स्ट्रेस्ड रहती हूँ इसके एक्स्ट्रा यूसेज से भी। लाइक बहुत सारी चीजें, घंटों निकल जाते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, इंपॉर्टेंट काम, प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी काम मिस हो जाते हैं। तो मैंने बहुत ज्यादा मोबाइल टाइमिंग भी रेगुलेट करना स्टार्ट किया। और मैंने फिक्र छोड़ दी कि चलो अभी 2 दिन मैं कुछ नहीं करूंगी और ऐसे भी बैठी हूँ, या जो मेरे सारे इनिशिएटिव स्लो भी चल रहे हैं, तो दैट्स फाइन। तो हमको स्टार्ट एक्सेप्ट करना है स्लोनेस को, और थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स पे भी ध्यान देना है। तो ये है मेरे पॉइंट्स कि मुझे कभी कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, खुद को अंदर से समझने के लिए, मेरे पास थोड़ी लेस इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, दिमाग खाली होना चाहिए, नहीं तो हमेशा दिमाग में बहुत सारी चीजें रहती है। जैसे कि मैं हर टॉक में बोलता हूँ और अपनी डिस्कशन में भी बोला था, तो मेरा तो एक मंत्र सिंपल ये है कि पॉजिटिव बने रहो, नेगेटिविटी को दूर भगाओ। इग्नोर कौन क्या कह रहा है उससे मत, उसके ऊपर मत ध्यान दो, है ना। अपना अपने ऊपर फोकस रखो। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आजकल बहुत सारी चीजें हैं, या बात करो। अगर आपको कुछ लोनलीनेस से है, या कोई ऐस पहले समझो कि क्यों स्ट्रेस क्यों आ रहा है, इज इट अ वर्क रिलेटेड और इज इट अ पर्सनल लाइफ रिलेटेड। जो भी है, आपके जो भी नियर वंस हो, ऐसा जो कि मतलब लेग पुलिंग वाला बंदा ना हो, उससे आप कनेक्ट होकर के एटलीस्ट उसको शेयर करो। क्योंकि जब आप अपने थॉट प्रोसेस को शेयर करते हो तो बहुत सारी चीजें, हो सकता है सामने वाला एटलीस्ट अगर नहीं आंसर नहीं दे पाए, वो सुन भी लेता है। तो आप कई बार अपन को लगता है ना, अरे यार चलो इस बंदे ने मेरी बात सुन ली। जब अपन किसी को कुछ बोलते हैं तो अगर वो बात सुन लेता है तो आधा स्ट्रेस तो वहीं खत्म हो जाता है। दूसरा, आजकल की दुनिया में वही कि क्या होता है, हम कंपैरिजन बहुत करने लग गए हैं। तो एक चीज है ना, जो पास्ट बीत गया का हम्म। उसको भूल जाओ, करंट पे ध्यान दो और फ्यूचर की चिंता करो। हम्म। कि कंपेयर मत करें, अपने ऊपर ध्यान दें और अपनी जो भी चीजें हैं उसको अपने हिसाब से, क्योंकि सामने वाले के साथ क्या सर्कमस्टेंसेस थे क्या नहीं थे, उसको आपको डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे मारवाड़ी में कहावत भी है, किसी ने ऐसी बनाई है, सच में है कि आप पारो ध्यान रखना पराई चिंता नहीं करनी। तो अब वो आप पर, तो उसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आप पे खुद पे वर्कआउट करोगे तो डेफिनेटली चीजें पॉजिटिव होंगी। और एक सबसे बड़ी है पॉजिटिव थिंकिंग। आप सोचो ही मत ना कि गलत हो रहा है, हो भी रहा है तो भी Correct. मत सोचो कि गलत हो रहा है। जो हो गया सो हो गया। अब जब सबको पता है कि मरना है आज नहीं तो कल, आज हम बात कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कल हो ना हो, जैसे वो मूवी बनी थी, लेकिन ये फैक्ट भी है। ये एकमात्र ऐसा सत्य है जो साइंस भी नहीं जान पाया, साधु मुनि भी नहीं जान पाए। सबको जाना है, सबको आना है। कब कौन आएगा कब कौन जाएगा, और हम इसके लाइव एग्जाम्पल देखते हैं ना। लोग छोटे से 6 महीने के बच्चे के ऊपर से 4 पहिए की गाड़ी बड़ी सी निकल जाती है और उसको कुछ नहीं होता। और वहीं एक हल्का सा कोई टक्कर साइकिल से मार जाता है और वो बंदा वहीं ऑन द स्पॉट मर जाता है। करेक्ट। बट वो ठीक है, साइकिल है, बनी हुई है तो, बट सही अपन बात उसको सोच के अगर अपना करंट काम करना छोड़ देंगे तो हो गया कल्याण। हम्म। हम्म। और सबको एक चीज ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बिलीनियर बनूं। ठीक है, आप अपनी फील्ड में ध्यान दो। हर करेक्ट आदमी अपने आप को इतना ध्यान रखना चाहिए कि, जैसे कि ये कहावत भी है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई मांगे तो वो भूखा ना जाए। साधु तो भी अब कोई भूखा ना मांगे जाए। वाली, हाँ तो कोई मांगे वाली कंडीशन तो ठीक है, पहले अपनी फिल कर लो। कोई मांगने वाली तो आजकल, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे वेरिएट्स आ गए हैं, कई फर्जी भी हो गए हैं, तो वो फिर आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आप जिसकी मदद कर रहे हो वो सच में नीडी है कि नहीं। तो उसके हम्म। लिए आपकी अलग साइकिल चलेगी, तो वो भी आपको मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो एक तो बस, तो मेन बात ये है घूम फिर के
सार यही है कि पॉजिटिव बने रहो, आसपास की चिंता को मुक्त रखो, अपनी मस्ती में रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कल किसने देखा है, आज की चिंता करो। करेक्ट। और आपको कैसा ड्रीम सेफ स्पेस चाहिए अगर आप कभी स्ट्रेस में हैं? यही मैम, पॉजिटिव 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 एनवायरनमेंट रहे। एनवायरनमेंट। ये स्ट्रेस तो बहुत तरीका है, देखिए इस बात से कोई नकार नहीं सकता मैम, और बोलना भी नहीं चाहिए, ये तो एक वो वाली बात हो जाएगी कि हाँ, जस्ट आप पब्लिकली बात करें तो आपने बोल दिया स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस सबको होता है और रहा है और है भी, बट मैं वही रहता हूँ मैम, मैं मेरे स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ समझने की, और अगर उस चीज का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ तो उसको सॉर्टेड करने की कोशिश करता हूँ, और नहीं अगर निकल सकता उसका सॉल्यूशन तो ठीक है, मूव ऑन। तो करेक्ट। इस तरह से मैं अपने स्ट्रेस को ओवरकम करने की कोशिश करता हूँ। It was a very wonderful discussion, Kriti. Thank you. Thank you, Sulabh ji. Thank थैंक you. यू एवरीवन। थैंक यू मैम।